the most inside of the house? Oh, what I miss the most? I think I'll miss the whole feel of Bigg Boss. The way they wake us up in the morning with a song and the way they give us Saptahik Karya. For past 3 months, my life was based on only weeks. There was no calculation of time, there was no calculation of days. The only way we used to look at our life was every Saturday eviction, every Sunday nomination, Monday to Thursday task, Friday chutti. This is how we used to look at our life. So it will take me time to get back to normal and absorb that, okay fine, now my life is normal and I can get up the way I want to get up, and if I sleep in the daytime, no dogs are going to bark because there used to be dogs barking and they would wake us up. We can't sleep in the day. So in totality, Bigg Boss is so much in my system right now कि I think it will take me time to get adjusted to my normal life. सबको उम्मीद थी कि आप जीतेंगी, आपको कितनी उम्मीद थी कि आप जीतेंगी? मुझे सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया अदा करना है कि सबको ये उम्मीद थी कि मैं जीतूंगी, क्योंकि मैं जब से बाहर निकली हूँ मुझे ये बात बहुत लोग बोल चुके हैं कि वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि मैं जीतूँ और उन्हें उम्मीद थी मैं ही जीतूंगी. बट मैं सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, इससे ज़्यादा कहूँगी मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं जीतूंगी. और उसका कारण ये है कि मुझे हर बार लगता था कि मैं क्या फोकल पॉइंट पे कभी दिखती भी होंगी, क्योंकि ज़्यादातर घर में इतने ड्रामा, इतनी लड़ाइयाँ, इतना कुछ हो रहा होता था कि मुझे लगता था सारा कंटेंट तो वही है. मैं बर्तन मांजती रह जाती थी और खाना बनाती रह जाती थी, तो कोई भी बाहर से आता था, कोई नई एंट्री भी होती थी शो में, मैं सिर्फ इतना ही पूछती थी कि मैं बर्तन धोने के अलावा कहीं और नजर आती हूँ कि नहीं नजर आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं सिर्फ बर्तन धोती ही नजर आती होंगी, एज मेरी मेजर फाइट्स ऐसी कुछ नहीं हुई घर में. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई यूज्ड टू फील कि शायद एक बैक सीट है मेरा, शायद मैं उतनी नजर नहीं आती हूँ, तो शायद ध्यान न जाए ऑडियंस का. बट आई एम थैंकफुल टू ऑडियंस कि उन्होंने एक एक चीज़ नोट की और बाहर आकर मुझे ये पता चला कि हर कोई यही चाहता था कि मैं जीतूं और मुझे हर किसी ने यही कहा कि आई डिजर्व टू विन. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट विक्ट्री. Juhi, your reasons for doing Bigg Boss, because when your name were announced inside the Bigg Boss house, when we came to know that Juhi is going to be there, we were like little pleasantly shocked. I mean, this is your first ever reality show. I mean, no, the Pati Patni wo. Not like Bigg Boss, but I have done a lot of reality shows. Like, I have done Comedy Circus and I have won that. Yeah, okay. So this is my second show that I am winning. But Bigg Boss in itself is a lifetime experience. You can't compare any other reality show with Bigg Boss because I think मेरी लाइफ की लॉन्गेस्ट शूटिंग है जिसका पैकअप 3.25 महीने बाद हुआ. आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट शिफ्ट ऑफ माय लाइफ. देयर वाज नो पैकअप एनी टाइम. आधी रात में गाने बज जाते थे और हम डांस करना शुरू करते थे क्योंकि वो टास्क है रात रात भर जागना. There has never been a show like Bigg Boss and I don't think I can ever do a show like What basically why I did it? Because for me it was very important to come back on TV with a big show and to show it to everybody that I am back with bang, because I did not take up work for almost a year in between because of my weight gain, which everybody knows, and I don't even shy about it because it was because of thyroid. And there was a problem because of which I had put on weight. So for me it was a big struggle to first lose weight, as thyroid does not let you lose weight easily. I had already lost 10 kgs and when I got a call for Bigg Boss, I thought that Bigg Boss is a show where I can show how I look again, that I am back. Second, for me it was very important कि पूरी जनता, ऑडियंस ये देखे कि असली जूही कौन है, क्योंकि इसके पहले जो शो मैंने किया था उसमें मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा था वो ये था कि बहुत ही कस्टमाइज जूही दिखाई गई थी और ऐसी जूही दिखाई गई थी जो कि सिर्फ गुस्सा करती है और उसको कोई और इमोशंस शायद आता ही नहीं है. मुझे लगा कि बिग बॉस में, क्योंकि थ्रू आउट द डे क्या क्या होता है वो हर एक घंटे के बाद का दिखाते हैं, सिर्फ दिन का 5 मिनट का फुटेज चूज करके नहीं दिखाते. तो आई थॉट दैट दिस इज द राइट शो to do where I can show who Juhi is as a person, that Juhi is loving, Juhi is caring, Juhi can laugh, Juhi can make people laugh, Juhi can joke, cry and get angry. That is a part of her personality, not only the whole of her personality. So पति पत्नी और वो जो हुआ था उसके बाद मेरे लिए बिग बॉस जैसा शो करना बहुत ज़रूरी था. अपने फैंस के लिए जिनको मुझसे उम्मीदें थी, वो चाहते थे कि वो देखें कि रियल जूही क्या है. एंड आई एम हैप्पी टुडे दैट दे हैव गॉट टू सी दैट द रियल जूही इज़ अ पर्सन जिसके पास सारे इमोशंस हैं और जो बहुत प्यार करता है. बिग बॉस ने आपको क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया. बिग बॉस ने सिखाया टू लेट गो. बिग बॉस ने सिखाया ग्रजेस होल्ड मत करो. बिग बॉस घर में ये सिखाया कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लाइक जिस पलंग पे आप सोते हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस फ़ोन को आप यूज़ करते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज वी जस्ट फील ओके वी कैन बाय इट. बट एक्चुअली ये सब चीज़ें कितनी वैल्यूएबल है, अगर ये आपसे छीन ली जाए तो आपको पता चलता है. एक
पैकेट ऑफ बटर के लिए, एक स्लाइस ऑफ चीज़ के लिए, एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए हम लोग दिन रात टास्क करते थे ताकि हम थर्सडे को टास्क में पास हो सकें, हमें कुछ पॉइंट्स मिले और हमको वो चीज़ें मिल सके। सो अगर एक कॉफ़ी, एक बटर, एक जैम इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है ज़िंदगी में, तो रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और उनको कभी जाने मत दो, ये सिखाता है बिग बॉस का घर कि इंसान कितने वैल्यूएबल है, आपकी फैमिली कितनी वैल्यूएबल है, आपके दोस्त कितने वैल्यूएबल हैं, एंड नेवर लेट देम गो। किसी छोटी सी नाराजगी या किसी छोटे से गुस्से पे एक रिश्ता कभी खराब मत होने दो, सिखाता है बिग बॉस। फॉर मी इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जूही को हमने देखा वो रियल जूही थी। आपको देखकर लगता है कि कोई दूसरी जूही बात कर रही है इस वक्त आपके सामने? अगर फेक हो तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 1.5 महीना कभी तो मुखौटा उतरेगा, किसी एक मोमेंट में तो उतरेगा जब कभी गुस्सा आता है और इंसान सोचना बंद कर देता है, रिएक्ट कर जाता है। लेकिन मैं शुरू से लेके अंत तक एक जैसी ही रही। मैंने अगर शुरू में लोगों को माफ़ किया तो ऐसा नहीं है कि अंत में जाके बोल दिया कि अब क्यों माफ़ करूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इनकी गुड बुक्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने शुरू में भी लोगों से सॉरी बोला, मैंने अंत में भी लोगों से सॉरी बोला। मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक जैसी थी वैसी ही रही। तो आई थिंक इट सेज इट ऑल कि मैंने मुखौटा नहीं पहना था। अगर मुखौटा पहनती तो कभी तो उतरता, किसी पल में तो उतरता। प्राइज मनी से क्या करने वाले हो? प्राइज मनी के बारे में सोचने का मौका ही कहाँ मिला है। बट एक चीज़ जो थॉट मन में आया जीतने के बाद वो यही था कि अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब मेरे बच्चे होंगे तो उनके लिए और उनके फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा जरूर करके रखना चाहूँगी जो मुझे पता है कि सिक्योर। स्काई के साथ आई थिंक बस स्पेकुलेशन थी कि आपस स्काई ने एक ग्रुप बनाया था और बाकी के साथ आप कॉन्स्पायर कर रहे थे, तो उसके बारे क्या कहेंगे आप? सी अनफॉर्चुनेट है कि बिग बॉस के घर में अगर लोग दोस्त बन जाते हैं और उनका ग्रुप बन जाता है तो उनको ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। हम बाहर दुनिया में आप सबके जितने भी दोस्त हैं, आप क्या कहते हैं? वी हैंग आउट विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हमारा ग्रुप है, मेरा 5 दोस्तों का ग्रुप है, मेरा 10 दोस्तों का ग्रुप है, ग्रुप ही कहते हैं ना, बट उसको नेगेटिवली नहीं देखा जाता। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो एक गेम शो है और वहाँ अगर 2-4 लोग साथ हो जाएं और वो हर वक्त साथ बैठे तो उसको नेगेटिवली ग्रुप का नाम दे दिया जाता है और उसको यही समझा जाता है कि वो इस फलाने के अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन बिग बॉस में स्काई के आने से पहले और स्काई के आने के बाद भी मेरे जिनसे 1-on-1 जैसे रिलेशंस थे वो वैसे ही रहे। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होती या कॉन्स्पिरेशन कर रहे होते हम लोग तो फिर तो हम ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब इसको आउट करते हैं, चलो अब उसको आउट करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ 4 हफ्ते बिग बॉस में बीच के जब ग्रुप का इल्जाम लगाया गया तब एक्चुअली मैंने एक बार भी किसी को नॉमिनेट तक नहीं किया है। मौका ऐसा आया कि मुझे नॉमिनेट करने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थी तो मैं लोगों को बैठ के नॉमिनेट तो करती, मैंने तो वो तक नहीं किया। इट्स जस्ट दैट स्काई और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हुई और अनफॉर्चुनेटली स्काई के साथ बहुत लोगों की लड़ाइयाँ हो गई, तो वो 2 लोग साथ एक जगह नहीं बैठते थे। एंड सिंस मैं स्काई से क्लोजर थी तो मैं ऑब्वियसली मुझे 2 में से एक को अनफॉर्चुनेटली चूज करना पड़ता था कि चलिए इनके साथ ज़्यादा बैठती। बट जब स्काई और वो ना हो और 1-on-1 मेरा सबसे इक्वेशन बहुत अच्छा रहा है। कल का दिन कैसे स्पेंड करोगे आप? सोचा था सोऊंगी बहुत देर तक, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, तो आई थिंक 2-3 दिन के बाद स्पेंड करूंगी दिन वैसा जैसा मैं चाहती हूँ। और सेलिब्रेशन क्या होगा? Celebrations तो I would just want to be with all my friends, my family and just enjoy with them and talk to them, ask them कैसा रहा शो, क्या रहा, क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया, मुझे कुछ नहीं पता है। Of course party goes without saying। कितनी रात अभी आप और नहीं सोगी, कितने रात जागने का आप फैसला करेंगे? सेलिब्रेशन कब तक चलेगा? देखिए दिन में क्योंकि अब हम सो सकते हैं इसलिए रात को नहीं सो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन में कोई कुत्ता आगे नहीं भौंकेगा मुझे उठाने के लिए। और वो जो मैं शो पे हमेशा से बोलता रहा the youth is behind me, the youth is behind me. When I came, when I saw all of them, तो जब उन्होंने वो रोर किया और चिल्लाए तो मुझे एक्चुअली लगा the youth is behind me. And that was more than winning that 1 करोड़। 1 करोड़ तो फिर आ जाएगा, भले चाहिए था बट आ जाएगा फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो 15 लाख की जो गुजारिश की थी, जब आप लोगों को मौका दिया गया था कि 15 लाख लेके घर के बाहर निकलते, तब क्यों नहीं आप में से किसी ने डेयरिंग दिखाई थी उस वक्त? क्योंकि आप सभी को विश्वास था और आपको पता था कि एक ही होगा विनर, तो उस वक्त क्यों नहीं लिया था आपने वो प्राइज? एक्चुअली मेरे को बाकियों का नहीं पता, बट मैं अपने लिए बोलना चाहूँगा एंड आई थिंक मैं अपने और मैं के बारे में बात कर सकता हूँ कि वो डेयरिंग उसको लेना नहीं था, डेयरिंग थी उसको ना लेना। क्योंकि उन सब में से मुझे मैंने जैसे शो पे भी बोला कि मुझे काफ़ी ज़रूरत थी 15 लाख रुपए की, और 15 लाख की किसी की ज़रूरत होती है, हम लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हैं कोई 15 लाख को मना नहीं करेगा, बट
क्योंकि अपने वोटर्स को ध्यान में रखते हुए और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने आपको शो के अंत तक पहुंचाया है, अगर आप 15 लाख लेके निकल जाते हो तो मेरे हिसाब से आप सबका दिल तोड़ रहे हो, और मैं दिल तोड़ने में विश्वास नहीं रखता, दिल जीतने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर ना भी विनर बन गई, ना ही महक बनी, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी जस्टिफाइड। वेल, जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैंने और महक ने दिल बहुत जीते हैं शो पे, और आई एम श्योर जूही ने भी जीते होंगे, बट वोटिंग और विनिंग टू सेपरेट थिंग्स। आई थिंक उन लोगों ने बहुत सालों से काम किया है, बहुत हिट सीरियल्स किए हैं, तो बट आई एम हैप्पी दैट आई वाज नंबर 1 इन द गाइस।